میں زین شاہ سے طلاق لے لوں گی ماں، وہ بھی اپنے خاندان کی طرح جاہل ہوگا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے وہ پہلی بار گاؤں گئی تھی اور حویلی میں عورتوں کے ساتھ برا سلوک دیکھ وہ نکاح توڑنے کی بات کر رہی تھی، جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ ابھی وہ کہتے پیچھے ہٹی تھی کہ زین شاہ کو دروازے پر دیکھ کانپ گئی۔ چچی جان، آپ پلیز کمرے سے باہر چلی جائیں۔ زین شاہ کے سرد لہجے پر اس کی ماں بے بسی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا کہہ رہی تھی بیگم آپ؟ طلاق چاہیے؟ اس کی جانب قدم بڑھاتے زین نے۔ اسلام آباد سے کراچی اتنی دور ملنے کے لیے ترس جاؤں گی، کچھ تو سوچا ہوتا، بیٹی بھی آ رہی ہیں یا رشتہ توڑ رہی ہیں؟ وہ دنگ نظروں سے ماں کو دیکھتے بولی تو شاہ زیب نے سیب کی کاش منہ میں ڈالتے تصحیح کی۔ کراچی نہیں گوٹھ، میری بہن خالص گاؤں ہے اور کراچی سے بھی آگے، مطلب ایک دفعہ تم گئی واپسی ناممکن۔ اس نے جلے ہوئے دل کو مزید جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ امی، آپ تو رات کو کہہ رہی تھی کراچی جانا ہے۔ وہ اب شاکڈ کیفیت میں ماں کو دیکھ رہی تھی جو نظر چراتے جلدی جلدی گھر کے کام سمیٹ رہی تھی۔ ہاں تو کراچی تک بائی ایئر جائیں گے، اس سے آگے گوٹھ جانے کے لیے بائی روڈ، انہوں نے تسلی دی۔ بائی روڈ؟ امی، گدا گاڑی گوٹھ جاتی ہے یا گھوڑا؟ شاہ زیب نے معصومیت سے پوچھا تو نمل لب کاٹ کر رہ گئی۔ گلافی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی تھی۔ امی نے اسے دیکھا تو گہری سانس لی۔ فکر مت کرو نمل، کیوں ابھی سے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کوئی بھی سخت فیصلہ لینے سے قبل تمہیں ایک بار وہاں جانا ہوگا، کیونکہ وہ گھر تمہارے مرحوم بابا جان کا ہے اور جو رشتہ تمہارا اس گھر سے ہے وہ انہی کی خواہش پر ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی بنا کسی آزمائش یا تصدیق کے میں ان کی روح کو تکلیف پہنچاؤں۔ وہ آج بھی ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی۔ نمل اور شاہ زیب صالحہ عالمگیر کی 2 اولادیں تھیں، بڑا شاہ زیب اور چھوٹی نمل۔ ان کے بچے بہت چھوٹے تھے جب ایک رات اچانک خون کی الٹی آنے سے عالمگیر شاہ کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں آخری سٹیج کا کینسر ڈائگنوز ہوا۔ کراچی کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں ان کی رپورٹس کی گئی تھی، مگر وہ اچھی بھلی زندگی گزارتے اچانک موت کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ صالحہ عالمگیر کی کل کائنات ان کے بچے اور شوہر تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اس قدر سخت اصولوں والے معاشرے میں وہ اپنے شوہر کے بنا بچوں کی پرورش کیسے کریں گی۔ وہ معجزے کی امید پر روز دعائیں کرتی تھیں، اور پھر ایک دن اچانک بے حد تکلیف میں عالمگیر شاہ نے اپنے بڑے بھائی سید عباس شاہ کو ہسپتال میں بلوانے بھیجا۔ انہوں نے جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ صالحہ اپنے شوہر کے اس فیصلے پر اختلاف رکھنے کے باوجود اس وقت خاموش رہی، اور پھر بچوں کا نکاح ہوتے ہی جیسے عالمگیر شاہ کی تڑپتی میں چلتی روح کو سکون آ گیا تھا۔ انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ ان کی بیٹی محفوظ پناہوں میں رہے گی، مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے صالحہ عدت کے بعد اپنے بچے لے کر ہمیشہ کے لیے میکے کا رخ کر جائیں گی۔ انہیں زین شاہ کے باپ سید عباس شاہ کی وہ بات آج بھی یاد تھی جو انہوں نے اسے گھر کے باہر گاڑی میں بٹھاتے کہی تھی۔ تم یہاں سے جا تو رہی ہو صالحہ، مگر یہ بات یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے ہمیشہ تم پر اور بچوں پر کھلے رہیں گے، اور نمل کی پرورش کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا، وہ اب زین شاہ کے نکاح میں ہے اور اس کی امانت ہے۔ ہم سید زادے ہیں۔ ہر ناانصافی ہنس کر سہ جاتے سوائے شرک اور امانت میں خیانت کے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے بڑے روب سے کہا تھا، مگر اس وقت صالحہ کو صرف اس تنگ ماحول سے نکلنا تھا، اور یہ اس کی بھول تھی کہ وہ شاہ خاندان اپنے بچوں کو اور اپنی امانت کو بھول جائے گا۔ سید عباس شاہ اپنے کال کے بہت پکے تھے۔ ہر ماہ بچوں کے اخراجات وقت پر بھیجتے تھے۔ ہر موسم میں دونوں بچوں کے لیے کپڑے، چیزیں، موسمی سوغاتیں خود لے کر جاتے تھے۔ نرمی سختی میں صالحہ کی ایک کال پر وہ ملک کے دوسرے کونے میں حاضر ہو جاتے۔ شروع میں وہ جو بڑے زعم سے اس گھر سے نکلی تھی تو میکے میں بھابھیوں کا رویہ دیکھ کر علم ہوا اس گھر کی بیٹی نہیں کسی بیوہ واپس آئی ہے، اور یہاں بھی سید عباس شاہ نے اس کا بھرم نہیں توڑا تھا۔ اس نے اسلام آباد میں ہی اس کے میکے کے قریب گھر لے دیا تھا۔ البتہ جب وہ اکیلی رہنے لگ گئیں تو انہوں نے گھر کے اندر داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا، ہمیشہ باہر سے ہی بچوں کی خیر خیریت پوچھ کر چلے جاتے۔ اکیلی عورت کے گھر میں قدم رکھنا ان کی تربیت کے خلاف تھا، اور یہی سخت اصول جو صالحہ کو وہاں برے لگتے اب وہ ان کی قدر جان گئی تھی۔ 20 سال بعد آج وہ اپنی امانت واپس مانگ رہے تھے۔ سید زین العابدین شاہ نے 28 برس کی عمر میں ہائر ایجوکیشن کے بعد اپنے والد اور چاچا کا پھیلا ہوا کاروبار سنبھال لیا تھا، اور اب سید عباس شاہ ان کے سر پر صحرا سجا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ صالحہ کو بچوں سمیت گوٹھ میں بلا رہے تھے۔ وہ گوٹھ کا ماحول اچھے سے جانتی تھی، تبھی دوبارہ کبھی وہاں قدم نہیں رکھا تھا، مگر اب انتہائی مجبوری تھی۔ جس شخص کے احسانات تلے گردن جھک چکی تھی وہاں انکار ناممکن تھا، مگر شاہ زیب جتنا وہاں جانے پر خوش ہو رہا تھا وہ دونوں ماں بیٹی اتنا ہی ڈر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص خود کتنا نیرو مائنڈڈ ہے جس نے آج تک اپنی منکوہا کو ایک کال تک نہیں کی۔ کیا اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اپنی منکوہا سے رابطہ کرتا؟ وہ ایئرپورٹ سے نکلتی کڑ رہی تھی، سیاہ کڑھائی والا نفیس سا سوٹ پہنے، شال کو شانوں پر اوڑے، اس نے چہرے پر سن گلاسز لگائے تھے، ہلکا سا میک اپ، ہلکی پھلکی جیولری۔ وہ سید زادی تھی، اسے ان آرائشوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی جس ماحول سے آئی تھی وہاں خود کو چکا چک رکھنا عام سی بات تھی۔ وہ 23 برس کی عمر میں بھی 18 برس کی لگ رہی تھی۔ ہمارے ہاں ولیمے سے پہلے اپنی عورت کو دیکھنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ لگتا ہے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تمہیں۔ یہ چادر جو کندھوں پر ڈالی ہے اسے سر پہ اور چہرے پر لے لو۔ ایک ہینڈسم خوبرو نوجوان اچانک اس کے سامنے آ کر بولا تو سن گلاسز بالوں میں ٹکائے نمل نے گھورا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ میں وہی ہوں جس کے کال نہ کرنے کا دکھ تمہاری جان لے رہا تھا۔ خونخوار نظروں سے اس کا جائزہ لیتے وہ اب اپنی چاچی کی طرف پلٹا۔ ان کے سامنے جھکتے وہ ان سے مل رہا تھا جن کی آنکھوں میں دیے جلنے لگے تھے۔ اس نے شاہ زیب کو گلے لگایا۔ نمل نے سلگ کر اس شخص کو دیکھا، مگر نہ چادر کا کونا سر پر لیا نہ چہرے پر۔ وہ یوں ہی ڈھیٹ بنی کھڑی رہی، یہاں تک کہ اس کی ماں نے ایک بھرپور جذباتی ملن کے بعد اب بیٹی کو گھورا۔ زین نے تم سے کچھ کہا ہے نمل؟ سچ میں ماما؟
یہ آپ کہہ رہی ہیں جو خود بھی دوپٹہ گلے میں لے کر وہاں گھومتی تھی اور اب کیسے تھان سر پر لے کر آئی ہیں؟ یہی فرق ہے وہاں اور یہاں میں۔ انہی فرسودہ باتوں کی وجہ سے آپ یہاں سے گئی تھی اور آپ چاہتی ہیں میں یہاں آ کر رہوں، وہ بھی اس انسان کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے برا سلوک کیا ہے۔ وہ شاکی نظروں سے ماں کو دیکھ رہی تھی جو نظریں چرا گئی۔ اتنے میں شاہ زیب اور زین شاہ بھی پہنچ گئے تھے۔ سامان ڈگی میں رکھ کر زین شاہ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے چاچی جان کو بٹھایا اور دروازے کو دھڑ سے بند کر دیا۔ شاہ زیب خود ہی آگے جا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ گھوم کر اس تک گیا جو سمجھ رہی تھی وہ اسے پروٹوکول دے کر بٹھائے گا تو وہ غلط تھی۔ اس نے اس کی چادر خود اس کے سر پر ڈالی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو، اس کی اس قدر قربت، اس کی انگلیاں اس کے چہرے سے مس ہو رہی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ چاہنے کے باوجود وہ اس شخص کا رعب دیکھ کر منہ بند کیے کھڑی رہی تھی، زبان جیسے مقفل ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے جیب سے ماسک نکال کر نمل کے چہرے پر لگایا تھا اور چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو پکڑ کر کانوں میں اڑیسا تھا۔ اس کی پلکیں اس کی اس جرت پر لرز اٹھی تھی اور پھر اسے دروازہ کھول کر چاچی جان کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس نے پلٹتے اچانک آنکھ دبا دی۔ وہ اس کی جرت پر ششدر رہ گئی۔ ایئرپورٹ کے اندر وہ شخص کتنا شریف بن رہا تھا اور اب اس کا سر ڈھانپ کر اس کی حرکت نے نمل کو سرتا پیر سلگا کر سرخ کر دیا تھا۔ صالحہ نہ جانے زین شاہ سے مل کر اتنی خوشی کا اظہار کیوں کر رہی تھی، اور شاہ زیب، وہ تو باتوں سے لگ رہا تھا پہلے سے اس کے ساتھ رابطے میں ہے، جیسے وہ امریکہ میں ساتھ ہی پڑھ رہے تھے۔ ایک وہی تھی خاموشی سے بیٹھی جیسے اس کا اس شخص سے کوئی تعلق نہ ہو، جبکہ اس شخص کا سب سے گہرا تعلق اسی سے تھا۔ اچانک نمل کی نظر بیک ریو مرر پر گئی تو وہ سٹپٹاتے باہر دیکھنے لگی۔ زین شاہ گاڑی چلاتے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کراچی سے گوٹھ کا سفر جیسے وہ 1 گھنٹے کا سمجھ رہی تھی 4 گھنٹوں بعد بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ زین شاہ نے اب گاڑی روک دی تھی۔ وہ لوگ کسی ہوٹل میں رک کر کھانا کھا رہے تھے جب ڈھابے والے ہوٹل کے برتن دیکھتے نمل نے ناک سکیڑی۔ ہم گھر چل کر کھاتے، پتہ نہیں یہ ڈھابے میں برتن دھلتے بھی ہیں یا نہیں۔ جتنی تم بھوک کی کچی ہو، گھر جاتے تک تمہارے کل پڑنے کا وقت ہو جاتا۔ شاہ زیب کے کہنے پر زین کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اب اس بےہودہ بات کا کوئی مطلب ہے؟ وہ چڑ گئی۔ لو بتائیے محترمہ، آپ کو اپنے سسرال کا حد درجہ بھی نہیں پتا؟ کراچی سے گوٹھ جانے میں زیادہ نہیں، بس یہی کوئی 8-9 گھنٹے لگتے ہیں۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ رضائی میں گھس کر مزے سے کھانا کھائے گی، نیٹ فلکس پر مووی دیکھے گی، اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی، پھر حیرت، پھر صدمہ اور پھر غصہ۔ زین العابدین شاہ نے اس کے چہرے پر پھیلنے والے سارے رنگ بغور دیکھے تھے۔ جس جگہ ابھی وہ بیٹھی تھی وہ قدرے کونے والی چارپائی تھی جس پر اندھیرا ہونے کی وجہ سے کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ کچھ ساتھ والی جگہ پر اس کی ماں بیٹھ گئی تھی، یوں اس کے آگے دیوار بن گئی تھی، اور عین سامنے والی چارپائی پر سامنے زین اور اس کی ماں کے سامنے شاہ زیب تھا۔ درمیان میں پلاسٹک کی ٹیبل پر کھانا لگایا ہوا تھا۔ وہ تینوں کھا رہے تھے جب اس کی انتڑیاں اس وقت کھانا تو مانگ رہی تھی مگر اس جگہ کا نہیں۔ 2-3 بار اس کی ماں نے کہا مگر اس نے کھانے کو چھوا تک نہیں تھا۔ زین شاہ نے اس کے لیے کھانا پیک کروا لیا تھا اور پانی کی کچھ بوتلیں بھی بھروا لی تھی۔ بڑا آیا، یہ اوقات ہے، اس کی ڈھابے کا پانی جمع کر رہا ہے، گھر جاتے جیسے بے ہوش ہو جائے گا، اس نے سر جھٹک کر کہا تھا۔ صبح گھر سے نکلتے وقت بھی اس نے ایک سیب اور دودھ کا گلاس لیا تھا۔ دوپہر میں لوکل ایریا کی فلائٹ ہونے کی وجہ سے صرف سینڈوچ ملا تھا اور اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور نمل کے پیٹ سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا پرس چیک کیا کہ شاید اس میں کوئی بسکٹ ہو، مگر اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جھنجلا کر اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ سر سیٹ کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موندے وہ ہینڈ فری لگا کر اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ بھوک کا احساس کم ہو، مگر بھلا ہو اس کے معدے کا جو بھوک کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پایا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ کافی دیر تو برداشت کرتی رہی مگر یکدم اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی۔ زین نے بیک ویو مرر سے دیکھا۔ اگر بھوک لگی تو تم کھانا کھا سکتی ہو، گھر پہنچنے میں ابھی بہت وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہاں تمہاری لاش اٹھا کر لے جانی پڑے۔ آپ کے دل میں تو یہی خواہش ہوگی نا، اس نے غصے سے کہا تھا۔ زین شاہ نے لب بھینچ لیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نمل کی گردن ایک طرف لڑک گئی جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اب وہ ہوش میں نہیں رہی، اور پھر وہی ڈھابے کا پانی اسے اٹھانے کے کام آیا، اور جب وہ آنکھیں کھول رہی تھی تو زین شاہ نے پانی کی بوتل اس کے منہ کو لگائی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو دیکھتی وہ کتنا فکر مند اور پریشان ہو گیا ہے، مگر کھانا کھاتے ہی اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ اپنی انا کو چھوڑ کر وہیں بیٹھ کر کھا لیتی تو اب درد نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے اس کو سارا دن بلا وجہ خالی رکھا ہے، تو اس لیے اب کھانا کھانے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر برداشت کرو، یہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑا آیا نیم حکیم، اس نے ففگی سے کہتے ہی رخ موڑ لیا۔ گاڑی گوٹھ کی طرف جا رہی تھی مگر اب نمل نے تھک کر اپنے چہرے پر خود ہی کپڑا رکھ لیا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی گوٹھ کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ٹھنڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ساری رات تقریباً سفر میں گزر گئی تھی۔ جس وقت وہ گوٹھ پہنچے صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ ان کی پہنچ سے ہی وہاں پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ دلہن کو دیکھ کر دلہن کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھی۔ نہ دن تھا نہ رات تھی، لیکن پھر بھی وہاں پر خوشیوں کے ساتھ شادیانے بجائے گئے تھے۔ سارے گھر کو لائٹ اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ یہاں پر تو شادی کی تیاری مکمل تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی وہ وہاں جا کے اس کو دیکھے گی، پرکھے گی، جانے گی، مگر یہاں تو جیسے سب ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ اس کی کزن اسے لیے اندر بھر گئی تھی اور وہ بس دانت پیس کے رہ گئی تھی۔ اس کی ماں جانے گھر کے کس کونے میں چلی گئی تھی، اور شاہ زیب، وہ تو آتے ہی زین شاہ کے ساتھ اوپر چلا گیا تھا۔ ایک وہ تھی جو ان جاہل عورتوں کے نرغے میں تھی۔ پتہ نہیں کون سی عورت تھی جو بار بار اس کو چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میری بیٹی پہلی بار اپنے گھر آئی ہے، یہ میری اصلی بیٹی ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی، تم سب تو چلی جاؤ گے، اصل میں یہی میری بیٹی ہے۔
वो बार बार उसको चूम रही थी। उसके कभी हाथ चूमती, कभी माथा चूमती। उसे उनसे घबराहट होने लगी थी। इस तरह तो कभी उसकी माँ ने उससे मोहब्बत नहीं की थी। वहाँ मौजूद दूसरी लड़कियां हंस दी। हंसने के बाद उनमें से एक कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, आपकी बेटियां आ गई हैं तो अब इसको सुबह सुबह उठा के अपने पैरों की मालिश करवाइएगा, जैसे हमसे करवाती हैं। अपनी अच्छी तरह खिदमत करवाइएगा, घर का झाड़ू पोछा बर्तन, इसके बाद सबका नाश्ता बर्तन, फिर दोपहर का खाना और बर्तन, फिर शाम की चाय और बर्तन, और फिर रात का खाना और बर्तन, और फिर रात को सोते वक्त एक दफ़ा फिर आपके पाँव दबाएगी और उसके बाद शाह भैया के पाँव दबाएगी। और फिर अगर किसी बात पे इनको बुरा लग गया तो फिर जो इनकी दुर्गत बनेगी वो तो बस ये देखेंगी, क्योंकि वहाँ पर हम थोड़ी होंगे, ये हमारा घर थोड़ी है, ये तो आपकी लाडली बेटी का घर है। किसी ने दिल का गुबार निकाला था या मजाक किया था, या फिर वो सब सच था। नमल कुछ समझ नहीं पाई, अलबत्ता दिल फौरन घबरा उठा था। इतने घटिया इनकशाफ सुनकर सुन सी रह गई थी। वो यहाँ से फौरन निकल जाना चाहती थी। भूख, तबीयत खराब, सफर का एहसास, कहीं जा सोया था। एहसास था तो सिर्फ ये कि वो उन जाहिल लोगों के बीच आ गई है जहाँ पर औरत को औरत नहीं, बहू को इंसान नहीं बल्कि बादी समझा जाता है। वो यहाँ हरगिज नहीं ठहर सकती थी। इससे जाना बेहतर था, अभी जाना था, उसी वक्त जाना था। उसकी माँ जाने पता नहीं कहाँ चली गई थी, और शाहजेब, उसको तो पता नहीं उसकी फिक्र थी भी या नहीं। फिक्र थी, उसकी माँ तो उनके एहसानों तले दबी थी। पता नहीं ये लोग उसको जाने देते या ना जाने देते। उसे अब जाकर एहसास हो रहा था उसने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। उसने फौरन यहाँ से भाग जाने का फैसला कर लिया था। अगर उसकी माँ यहाँ रुकना चाहती थी तो वो रुक सकती थी, लेकिन वो यहाँ नहीं रुक सकती थी। उसने सोच लिया था वो ज़ैन शाह से तलाक लेगी। एक तो वो पहले ही बहुत वसील था, और यहाँ जो ये लड़कियाँ बात कर रही थी, अगर वो सच था तो फिर उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है, और वो अपनी ज़िंदगी ये एहसानों के बोझ तले दबाकर नहीं गुजार सकती थी। इसलिए वो फ़ौरन वहाँ से उड़ गई। मुझे आराम करना है, प्लीज़ मेरी माँ को बुला दीजिए। मेरी माँ किधर है? उसने जिस तरह कहा ताई अम्मी चौंक से गई। अभी बुलाती हूँ सालिहा को, वो यहीं होगी। सैयद अब्बास शाह जी की तबीयत ज़रा नासाज है, उनके पास गई थी। मेरा ख्याल है बेटी तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए। नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ आप मेरी मामा को बुलवा दें। उसने रूहानसी होकर कहा तो वो समझ गई कि वो वाकई उसकी तबीयत ख़राब है। सर हिलाने लगी और मुलाजमा को सालिहा को बुलाने भेज दिया। सफ़र बहुत लंबा था, तुम पहले आराम कर लो। आज शाम को तुम्हारी मेहंदी है। ये शादी है ना, सबसे ज़्यादा दुल्हन को थका देती है। इसलिए मेरी बेटी तुम आराम कर लेना। अगर डॉक्टर की ज़रूरत हो तो बताना, मैं ज़ैन शाह से कहूँगी डॉक्टर को बुला लाएगा। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मेरी मामा को आने दें। उन्होंने सालिहा को बुलाया तो वो भी हैरान थी उसका मुतालबा सुनकर। लेकिन ये सब तुम क्या कह रही हो? उसका समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है नमल बेटा, इससे कुछ भी नहीं है। वो लड़कियां तो बस मजाक कर रही थी, तुम मेरी बेटी हो। ताई अम्मी ने समझाने की कोशिश की थी, मगर वो कोई भी बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। मजबूरन उन्हें वहां से जाना पड़ा ताकि वो ज़ैन शाह को बुलाकर इस मामले को ठीक कर सके। अगर कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार सुन लेता तो कैसी सुक्की होती, और अगर सैयद अब्बास शाह ही सुन लेते तो फिर जो होता वो कोई नहीं संभाल पाता। दूसरी तरफ उसकी माँ हैरान थी कि अभी यहाँ पर आए कुछ ही घंटे हुए थे और उसने अजीब सी जिद शुरू कर दी थी जो कि बिल्कुल नामुमकिन थी। मैं ज़ैन शाह से तलाक ले लूंगी माँ, वो भी अपने ख़ानदान की तरह जाहिल होगा। वो रोते हुए कह रही थी। चंद घंटे पहले वो पहली बार गाँव गई थी और हवेली में औरतों के साथ बुरा सलूक देख वो निकाह तोड़ने की बात कर रही थी, जो उसके बाप ने मरने से पहले बचपन में ही कर दिया था। अभी वो कहते पीछे हटी थी कि ज़ैन शाह को दरवाजे पर देख काम गई। चची जान, आप प्लीज़ कमरे से बाहर चली जाएं। ज़ैन शाह के सर्द लहजे पर उसकी माँ बेबसी से कमरे से बाहर निकल गई। क्या कह रही थी आप बेगम? तलाक चाहिए? उसकी जानिब कदम बढ़ाते ज़ैन ने कमरे के दरवाजे को लॉक किया था। बाहर ज़ैन शाह की माँ और नमल की माँ लब काट के रह गई थी। दोनों ही सैयद खानदान के मर्दों के गुस्से से वाकिफ थी, और अंदर वो गुड़िया डर कर सहम कर उल्टे कदम चलने लगी थी। नहीं, मैं तो बस, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं वो सब नहीं कर सकती जो यहाँ की औरतें करती हैं। मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ, मुझसे वो सब नहीं होगा। यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, यहाँ औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं किसी के साथ होता नहीं देख सकती। तो अगर मेरे साथ होगा तो फिर मुझ पर क्या बीतेगी, ये भी तो सोचे ना। उसने डरते डरते अपनी वो बात कह दी थी जो उसके दिल में थी, जो उसने महसूस की थी, जो वो किसी के साथ होते नहीं देख सकती थी, तो फिर वो खुद पर कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। पहले तो वो चौंका और फिर हैरान हो गया। ऐसा कौन सा जुल्म देख लिया यहाँ पर तुमने जो यहाँ की औरतों के साथ हो रहा है? ज़रा मुझे भी तो पता चले, मेरे घर की औरतों के साथ क्या हो रहा है जो मुझे ही नहीं पता। जी, वो आपके घर की औरतों को सुबह उठकर सास के पाँव दबाने पड़ते हैं, और नाश्ता बनाना पड़ता है, और फिर बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर खाना बनाना पड़ता है, और फिर बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर शाम को खाना बनाना पड़ता है, और फिर बर्तन धोने पड़ते हैं, और फिर उसको दोबारा सास के पाँव दबाने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद उसको शोहर के पाँव दबाने पड़ते हैं। और उसके बाद अगर उसके शोहर को उसका मूड अच्छा हो तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर उसका मूड ख़राब हो तो वो अपनी बीवी को मारता पीटता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दी, मैं ये सब नहीं देख सकती, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती। ज़ैन शाह ने उसकी तरफ हैरत से देखा और उसके शाने थामे। तुम्हें ये सब किसने कहा? जी, आपकी बहनें कह रही थी, मुझे सब पता चल गया यहाँ पर क्या होता है। मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं इस कैद में नहीं रह सकती। उसने उल्टे कदम चलते घबरा कर कहा था। अच्छा, तो मेरी बहनों ने तुम्हें बताया है कि यहाँ पर औरतों के साथ जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, और वो सब तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि तुम बहू हो तो फिर तुम्हारे साथ भी होगा, है ना? उसने कहा था। उसने जोर जोर से समझदारी से सर हिलाया। यकदम ज़ैन शाह ने उसे अपनी तरफ खींचा, वो उसके सीने से जा लगी। मैं बताऊं तुम्हें यहाँ पर क्या होता है? औरतों के साथ, यहाँ पर बहुओं के साथ क्या सलूक किया जाता है?
यहाँ पर वो सिर्फ अपने शौहर की खिदमत करती हैं। और खिदमत भी जानती हो कैसे करती हैं? उसने झुककर उसकी आंखों में झांकते पूछा। वो खौफजदा हुए पीछे हटी। जैसे तुम्हारे शहर में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स की करती हैं। यह सब तो तुम जानती होगी ना। तुम भी तो मुझसे बात करना चाहती थी ना फोन पे। तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी। तुम्हारा भी तो दिल में चलता था कि तुम मुझसे बात करो। मगर वो क्या है ना, जैन शाह का दिल, उसके जज्बात इतने सस्ते नहीं है कि वो फोन पर लुटाता रहे। मुझे बातों से ज्यादा अमली मोहब्बत पसंद है। और तुम कह रही थी तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए। तो माय डियर वाइफ, तुमने शायद कभी अपना निकाहनामा नहीं देखा, तो ये देखो। उसने पॉकेट से फोन निकाल कर निकाहनामे की कॉपी सामने की। ध्यान से पढ़ो। तुम्हारे पापा ने मरने से पहले तलाक के सब हक, बच्चों के हक मेरे नाम कर दिए थे। और इस ब्लॉक में देखें अच्छे से बेगम, आपके पास अलहदा रहने का, रिश्ता तोड़ने का ऑप्शन मौजूद है, मगर खुला या दूसरे निकाह का मुतालबा भी आप नहीं कर सकती। उसने फोन उसे पकड़ाकर उसके पल पल बदलते तासुरात देखे थे। अगर वहाँ किसी बॉयफ्रेंड को उम्मीद दिलाकर आई हैं बेगम साहिबा, तो ये भूल जाएं कि अब आप वापस जाकर उससे शादी कर लेंगे, क्योंकि जिस जगह आप पहुंच चुकी हैं, यहाँ से औरत की डोली आने के बाद उसका जनाजा ही उठाया जाता है। उसने उसके बाजों पर गिरफ्त मजबूत करते कहा था। दिल तो उसका चाहा था उसे सच बता दे कि वो सब मजाक है, मगर वो लड़की जब से आई थी उसे तंग कर रही थी और बिल्कुल सुकून नहीं लेने दे रही थी। उसे अब बदला लेने का ख्याल सता रहा था। वो लड़की यकीनन जल्दी उठने और काम से डरने वाली थी। गो कि वो जानता था शहर की लड़कियां नाजुक तबीयत की होती हैं, मगर उसकी अपनी बीवी इस कदर काम से भागने वाली होगी, उसे आज अंदाजा हो रहा था। वो उसे अच्छी तरह डरा धमका कर खड़ा था। वो तो अपने निकाहनामे पर सारे हक जब्त किए जाने पर रोने को तैयार बैठी थी। ऊपर से वो कह रहा था कि वो सब सच है और वही सब उसके साथ होगा जो यहाँ पर बाकी औरतों के साथ हो रहा है। अगर ये बात सच थी तो यहाँ से भाग जाती, किसी भी तरह से भाग जाना था। उसने फैसला कर लिया था और अब उस पर अमल करना था, और उस पर अमल करने के लिए उसको इंतजार करना था। जैन शाह कमरे में से चला गया था। पीछे छोड़ दिया था तो अपनी बेपनाह नफरत की खुशबू, जो कि नमल का ख्याल था कि वह खुशबू नफरत की है। रात में मेहंदी का फंक्शन था और निकाह हो जाने के बावजूद फंक्शन अलग अलग किया गया था, और इस चीज़ ने उसे मजीद गुस्सा दिलाया था कि वो सब लोग नैरो माइंडेड थे। वो सैयद अब्बास शाह से मिली थी और वो इतनी बारोब शख्सियत के मालिक थे कि वो जो सोच रही थी वो उसकी मदद करेंगे, वो उनसे मुतालबा कर सकेगी और बहुत कुछ मनवा लेगी। वो उनसे मिलने के बाद मुंह पे कुफ्फल लगाए अब खामोशी से अपना मेहंदी का फंक्शन होते देख रही थी। भाभी का मूड खराब है, लगता है जैन भैया के साथ बैठना चाहती थी। उसकी नन्हे छेड़ा था तो बिला वजह की छेड़छाड़ पर घबराने लगी। उस थानेदार के साथ बैठने से अच्छा मैं यहाँ अकेली बैठी अकड़ जाऊं, उसने कुड़कर सोचा, मगर मुंह से एक लफ्ज नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात जो नमल को लगी थी वो ये थी कि मर्दों की गैदरिंग अलग होने के बावजूद वहां मौजूद हर लड़की, हर औरत ने सर ढांप रखा। यानी पहले इतने महंगे मेकअप, हेयर स्टाइल और कपड़ों पर पैसे लगाए थे, और फिर सर ढांपने के बाद सारी पर्सनैलिटी का सत्यानाश मार दिया था। अजीब लोग थे, पर्दे के नाम पर चेहरे मर्दों से छुपा लेते थे, सर ढांप लेते थे। मर्दों में मर्दों वाली बात नहीं थी, निगाहें नीची करके घर में दाखिल होते थे, नाक की सीध में अपने अपने कमरे में मर जाते। क्या फैमिली ऐसी होती है? वो तो टीवी, ड्रामों और फिल्मों में कुछ और देखती रही थी। और अगर वो खवातीन इतनी बाहयात थी तो इतने महंगे तरीन ब्रांडेड ड्रेस क्यों पहनकर घूम रही थी? उसे ये सब ढोंग लग रहा था जो मर्द औरतों से और औरतें मर्दों के साथ कर रही थी। वहां पर अचानक सैयद अब्बास शाह की आमद हुई तो औरतों और बच्चियों की वो नजरें उनसे हटा नहीं पा रही थी। वो मुतवाजन चाल चलते स्टेज तक आए और फिर उन्होंने नमल के सर पर हाथ रखा। कितने ही आंसुओं का गला उसने घूंट डाला था। उस शख्स से जाने क्यों बाप की खुशबू आती थी। उसने मुकम्मल सर नहीं ढांपा था और सैयद अब्बास शाह ने उसे नहीं कहा, उसने चेहरा नहीं ढांपा था। उन्होंने नजर भरकर उसे नहीं देखा तो शिकवा भी नहीं किया था। मुझे मेरे भाई के सामने कयामत के रोज सुरखरू कर देना। उसने मुझसे जाते वक्त मेरा जैन मांगा था, मैं उसे मना नहीं कर सका। अगर उस वक्त वो मुझसे उसकी जान भी मांगता तो मरहूम सैयद आलमगीर शाह की कसम मैं उसके कदमों में अपने बेटे की जान भी रख देता। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा था, पहली बार मुझसे फरमाइश की थी, और फरमाइश भी ऐसी जो बहुत खूबसूरत थी। काश वो होता और आज तुम्हें खुद रुखसत करता। काश वो होता तो देखता आज सैयद अब्बास शाह अपने घर हूर लेकर जा रहा है। अगर अल्लाह ने मोहम्मद को फातिमा दी थी तो मुझे निमल दी है। मैं उस रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने ये दिन मुझे देखने का मौका दिया, मुझे ये मौका दिया कि मेरा भाई जाते वक्त मुझ पर जो जिम्मेदारी डाल कर गया था उसे अपने हाथों से पूरी कर सकूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नमल कि तुमने बरसों पुराने फैसले का मान रख लिया। तुमने सैयद अब्बास शाह को खरीद लिया है। इसके बदले में तुम क्या मांगती हो? उन्होंने भरी महफिल में कहा था। दूसरी तरफ स्टेज के उस पार जहाँ दूसरा स्टेज था वहाँ जैन शाह के दिल ने एक बीट मिस की थी। कहीं उसने वो मांग लिया जिसके बाद वो जी ना सका तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि इस घर के जो भी रस्म और रिवाज है मैं उन्हें ज़बरदस्ती नहीं निभा सकती, चाहे वो काम का मामला हो या फिर चेहरा ढांपने का। मैं सब काम अपनी मर्जी और दिल की रजामंदी से करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसने डरते डरते कहा था। लेकिन सैयद अब्बास शाह ने झुककर उसके सर पर लब रखे, चंद सेकंड के लिए उसका सर सीने से लगाया था। तुम मेरी बेटी हो निमल, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, ये तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। उनकी बात पर वो एकदम हल्की फुल्की हुई। दूसरी तरफ जैन शाह का सांस जहाँ पर रुका हुआ बहाल हुआ, वहीं उसके पर्दा न करने वाली बात पर वो अंदर ही अंदर दांत पीस कर रह गया था। जो मर्जी कर लो निमल बेगम, तुम्हें करना तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। उसने चेहरे पे हाथ फेरकर खुद को रिलैक्स करते सोचा था। अगले दिन उसकी रुखसती का दिन था। रुखसती के साथ ही वलीमा रखा गया था क्योंकि निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए निकाह और वलीमे के फंक्शन को शलीमा बना दिया गया था, यानी शादी और वलीमा। वो गोल्डन कलर की मैक्सी जेब तन किए, हाथों में भर भर चूड़ियां पहने, जेवरात से लदी, मेहंदी से सजी खुशबू उड़ाते
गजरे पहनकर 16 सिंगार किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे सामने कोई सैयदजादी नहीं, आसमान के चांद का टुकड़ा हो जिस पर टूट कर रूप आया था। और क्यों ना आता, किसी ने बरसों उसका बहुत इंतजार किया था, किसी ने एक एक पल उस दिन का बहुत मुश्किल से इंतजार करते गुजारा था। और अब वो दिन आया था तो वो उसके पहलू में बैठी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि साथ बैठा शख्स खुद को कितना खुशनसीब तस्वर कर रहा है। और वो लड़की जिसने कल की पूरी रात मेहंदी के फंक्शन के बाद रोकर बैन करते गुजारी थी, उस वक्त कितनी तकलीफ से गुजर रही थी। वो शख्स उसकी तकलीफ का अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि उसकी बहनें और उसके मजाक ने उसे किस तरह के जहनी डिप्रेशन में धकेल दिया था। वो आज़ाद मुआशरे से आई थी और उसके साथ इस तरह का मजाक करने का मतलब था कि उसे आज़ादी से कैद में धकेल देने का ख्वाब दिखाया। इतना भयानक ख्वाब देख के कोई भी इंसान डर सकता था, और वो थी ही नाजुक सी लड़की, तो वो कैसे न डरती। सारे फंक्शंस के बाद उसको सैयद जैन शाह के कमरे में बिठा दिया गया, जहाँ पर फूलों से कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की खुशी थी। पूरे कमरे के फर्श पर इतनी ज्यादा गुलाब की पत्तियां थी कि वो कोई नहीं बता सकता था कि उस फर्श का रंग कैसा है। इस कदर फूलों को उस कमरे से भर दिया गया था। जाने उसके इस्तकबाल में उस शख्स ने कितने फूल सजाए थे, कितने फूल उसकी राहों में बिछाए थे। उस कमरे की हर जगह फूलों से भरी थी। छत से लटकती बिस्तर के चारों तरफ फूलों की लड़ियां, हर दीवार पर सजे फूल, ड्रेसिंग पे बना दिल, साइड टेबल्स पे बने दिल, बेड पे ऐन दरमियान में बना दिल, और साइड पर सारे बेड पर बिखरी हुई पत्तियां। मगर उसे ये सब कहाँ नजर आ रहा था? उसे तो वो कैद के दिन नजर आ रहे थे कि वो आएगा, कहेगा मेरे पाँव दबाओ, और फिर अगर उसका मूड खराब हो गया और वो उसके पैर दबाने से खुश ना हुआ तो वो उसको मारेगा। उसे यही सोच सोच के तकलीफ हो रही थी। अब वो क्या करेगी? अब वो अपना बचाव कैसे करेगी? फिर अचानक उसको टेबल पर रखे फ्रूट में से एक छुरी नजर आई। उसने वो छुरी पकड़कर अपने पास रख ली। उसके कमरे में आने से पहले वो बहुत कुछ सोचकर अपने आप ही खौफजदा हो चुकी थी। वो कमरे में आया तो वो एकदम सहम के अपना आप समेट कर बैठ गई। जैन शाह ने मुस्कुराहट दबाते उसे देखा। वो बिल्कुल अपने बाप की तरह चलता था, मतवाजन, रौबदार, मजबूत चाल चलना। उसने शहर में ऐसे मर्दों को चलते नहीं देखा था जिस तरह सैयद अब्बास शाह और शाह जैन चलते थे। एकदम उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि काश वो अपने बाप को उस हवेली में, उस घर में चलता फिरता देख सकती। मगर ये नामुमकिन था, बिल्कुल नामुमकिन। उसने तो आज तक उनकी कोई चीज़ नहीं देखी थी सिवाय उनको तस्वीरों में। चंद एक तस्वीरें थी जो उसकी माँ यहाँ से लेकर गई थी, वो भी धुंधली पड़ चुकी थी। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे देखकर वो कह सकती थी कि उसका बाप ऐसा था। वो अपने ख्यालों में गुम थी कि वो उसके सामने जा बैठा। उसने उसकी एक आवारा लट छेड़ी तो वो होश में आई। शौहर सामने है, उसे छोड़कर किसके ख्यालों में गुम हो बेगम? हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। उसने उसे देखते जेरे लब शेर पड़ा था जो कि निमल के बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गया था। उसने छेड़ा था, मगर निमल के दिल में ये बात चुभने लगी थी कि वो उस पर शक करता है और उस पर यकीन नहीं करता। शायद वो असल में कहना चाह रहा है कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के ख्यालों में गुम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने बाप के बारे में सोच रही थी और उसको एहसास हुआ बहुत गलत वक्त पे अपने बाप को सोच रही है। उससे उस वक्त उसकी टांगें दबानी थी जैसे कि यहाँ का रिवाज था, लेकिन वो ये काम अगर आज कर लेती तो उसको सारी उम्र ये काम करना पड़ता। इसलिए उसने अपने आप को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की और डरते डरते नजर उठाई तो वो उसे ही देख रहा था, जैसे जांच रहा हो कि क्या सोच रही है। इससे पहले कि जैन शाह उससे कुछ कहता, उसकी सुनता, निमल खुद ही बोल उठी, मैं आपकी टांगे नहीं दबाऊंगी। खबरदार जो आपने मुझे टांगे दबाने को कहा। मैं ताया जान से कह चुकी हूँ कि मैं इस घर के उसूल अपनी मर्जी से मानूंगी। अगर आपने मुझे तंग करने की कोशिश की या मुझे मारा या मुझे जबरदस्ती टांगे दबवाई तो मैं अभी और इसी वक्त जाकर ताया जान को बता दूंगी। उसने उसे भरपूर तरीके से चिताया कि वो उससे किया वादा कर चुके हैं। जितना वो उसको बेवकूफ़ समझता था वो उतनी बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं थी। अव्वल तो ये बात झूठ थी, लेकिन अगर सच होती तो वो वाकई बहुत अक्लमंद साबित हुई थी। उसकी इस बेवकूफ़ाना बात पर जैन शाह कितने ही देर मुंह खोले उसको देखता रहा। पहले तो उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है, फिर जब समझ आया तो एकदम जोर से हंसा और हंसते हुए बेड पर गिर गया। नमल ने खौफजदा होकर उसे देखा। उसे लगा कि वो पागल हो चुका है और उसके बाद उसने फिर कहना शुरू किया, आप जो मर्जी कर लें, मैं टांगे नहीं दबाऊंगी। लेकिन जैन शाह को शरारत सूझ चुकी थी। उसने फौरन अपनी हंसी कंट्रोल की और अपने चेहरे से शरारत के तासुरात छुपाकर उसे संजीदा किया और बड़े रौब से उससे कहना शुरू किया, क्यों, तुम ऐसा क्यों नहीं करोगी? हमारे यहाँ पर रिवाज है, बीवियां अपने शौहर के पैर जरूर दबाती हैं और तुम्हें ये काम आज से अभी से करना होगा। देखता हूँ कि तुम किस तरह ये काम नहीं करती। इस कमरे से बाहर के मामलात में तो तुम अपने ताया जान को घसीट सकती हो, लेकिन इस कमरे में तय होने वाले मामलात में तुम किसी को नहीं घसीट सकती, समझी? वरना इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपनी तरफ से वो उसको डरा धमका चुका था और अब उसका रिजल्ट कुछ इस तरह आया था कि उसने तकिए के नीचे से चाकू निकाल लिया और उसे डराना शुरू कर दिया। खबरदार जो आपने मुझसे इस तरह का कोई काम करवाने का सोचा भी तो मैं किसी के पाँव नहीं दबाऊंगी यहाँ पर। उसकी बहादुरी के मुजाहरे पर जैन शाह अश अश कर उठा था और दिल में खुद को दाद दे रहा था। वाह सैयद जैन शाह, क्या बीवी मिली है। चाचा जान खुद तो चले गए, लेकिन अपनी मुसीबत तुम्हारे गले में तोक की तरह डाल गए। अभी जो ये सुकून से बैठी है बिना वार्न किए, ये चाकू तुम्हारे पेट में उतार देती तो तुम तो फजूल में इश्क में शहीद हो जाते। चाचा जान ने दरअसल अपनी इकलौती बेटी ने इकलौती मुसीबत तुम्हारे गले में डाली है। ये बात तुम लिख के रख लो, ये औरत तुम्हें तिगनी का नाच नचाएगी। पहले ही दिन आते उसने सर पर दुपट्टा ना लेने वाली बात को मनवा लिया था। आगे जाने वो क्या क्या मनवाती और ताया भतीजा मानते रहते। आखिर मोहब्बत जो थी एक की अपने भाई से, दूसरे की अपनी बीवी से। चल भाई जैन सीधा हो जा, ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, उंगली अब टेढ़ी कर ले। कहीं ऐसा ना हो बेगम ये चाकू सेब काटने की बजाय मुंडी काटने का इस्तेमाल में ले आए। उसे रखकर बात करो स्वीट हार्ट। नहीं हरगिज नहीं, मैं नहीं इसे रखूंगी।
पहले आप कहें कि नमल तुम मेरी टांगें नहीं दबाओगी, और मैं ऐसा क्यों कहूँगा? क्योंकि आपको ऐसा कहना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ आप ऐसा कहें। वो बस जिद थी। मेरे ऐसा कहने से क्या होगा? मुझे टांगें नहीं दबानी पड़ेंगी। ओके, इसे रख दो, मुझे कोई खिदमत नहीं करवानी। झुंझलाकर कहते वो अपनी जगह से उठा और वार्डरोब खोलकर अपने कपड़े निकालते वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद जब वो वापस निकला तो उसका चेहरा गीला था। अपने कपड़े हैंग करके अलमारी में लटकाने के बाद वो मुंह फुलाए खामोशी से अपनी जगह पर दराज हो गया। निमल ने चाकू साइड टेबल पर रखा। कुछ देर उसकी पुश्त को देखती रही, हत्ता के थक गई। वो शख्स अगर उस तरह के माहौल में ना रहता होता तो यकीनन किसी भी लड़की का आइडियल होता, मगर निमल तो उससे दहशत ज़दा हो रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो सो गया तो उसने चेक करने के लिए कि वो वाकई सो गया है जरा आगे होकर उस पर झुककर देखा और जैन शाह ने फौरन उसे पकड़ लिया। निमल अगले ही पल उसकी मुकम्मल गिरफ्त में थी। चलो टांगे दबाने का नहीं, लेकिन एक और रिवाज भी है मियाँ बीवी के दरमियान, वो तो सारी दुनिया में चलता आ रहा है, उससे मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा। उसने शरारत से कहते लैंप की रोशनी मद्धम कर दी थी और फिर अपनी सांसों और उसकी सांसों को आपस में उलझाने के बाद उसके लाख एहतजाज, लाख मना करने के बावजूद उससे अपना हक लिया था। और निमल सारी रात उसकी बेपनाह शिद्दतें सहती सुबह तक निढाल हो चुकी थी। वो उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता रहा था और वो ये समझती रही थी कि ज़ैनुल आबिदीन शाह ने उस पर जबर किया है। उसे बताया है कि यहाँ पर औरत जब बीवी बन जाए तो वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। वो उससे शदीद बदगुमान हो चुकी थी। सुबह उसकी आंख खोली तो शाहजैन अभी तक सो रहा था। उसे उसके चेहरे पर फैला सुकून देखकर रोना आ रहा था। वो यहाँ रहना नहीं चाह रही थी और अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि वो उससे अपना हक ले चुका था और मुमकिन था कि अब वो उसे कभी ना छोड़ता, वो उससे कभी दस्तबरदार ना होता। पता नहीं उसकी माँ को क्या हो गया था जो शहर में ये कहती थी कि यहाँ के रिवाज, यहाँ की रस्में बहुत फरसूदा हैं, और यहाँ पर आके वो इस तरह मुतमईन और पुरसुकून होकर फिर रही थी जैसे वो यही माहौल तो कई सालों से तलाश करने की कोशिश कर रही थी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने लिए क्या कर सकती है, जबकि उसकी माँ और भाई उसका साथ नहीं दे रहे थे और ना ही कोई ऐसा था जिससे वो अपने दिल की बात कर सकती। ताज़ा गुस्सा लेकर उसने अपने थके हुए एहसास पुरसुकून करने की कोशिश की थी और अलमारी से अपने लिए कोई जोड़ा देखने लगी। जब ही ज़ैन शाह ने पीछे से हिसार बांधकर उसके कान के करीब झुककर कहा, नई जिंदगी की नई सुबह बखैर मेरी जान। वो इस अचानक रोमांस पर डर गई थी, मगर उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो बिला वजह इतना रोमांटिक शौहर क्यों बन रहा है। गुज़श्ता रात के बाद वो अब उससे नजर मिलाकर बात भी नहीं कर सकती थी। एक फितरती झिझक आड़े आ रही थी और वो उसकी खामोशी का भरपूर फायदा उठा रहा था। बात गाउन पहने वो उस वक्त अलमारी के पट खोले उसके रहमो करम पर खड़ी थी। वो गिरने लगी थी कि उसने अलमारी के पट को मजबूती से थामकर खुद को बेमुश्किल गिरने से रोका था। किसी ने दरवाजा बजाया था और उसके साथ ही निमल ने मिनमनाकर कहा, बाहर कोई है तो देखें। उसने लब काटते कहा। ज़ैन शाह ने उसको फौरन अपनी तरफ घुमाकर कमर में हाथ डालते करीब किया। पहले तुम्हें देख लो। तुम जानती हो मुझे नशे से बहुत नफरत है, मगर तुम्हारी गुर्बत नशा है नशा। ज़ैन शाह ने उसके भीगे बालों में हाथ डालते कहा था और उसके चेहरे पर झुका। दरवाजा फिर से बजा था, मगर इस बार नमल उसे खोलने को नहीं कह सकी, क्योंकि वो उसके होंठ अपनी कैद में ले चुका था। उसे वारिफ्तगी से देखते ज़ैन ने उसकी पेशानी पर लब रखे। आज मैं सफ़ेद सूट पहन रहा हूँ, तुम भी कुछ लाइट कलर का पहनना। उसने उसे हटाकर अलमारी का जायजा लिया और एक सफ़ेद ड्रेस जिस पर गोल्डन कढ़ाई और मोती का काम हुआ था वो निकालकर उसे दिया। अच्छे से तैयार होना, मैं अभी आया। वो उसका गाल चूमकर वॉशरूम चला गया। निमल ने पहले होंठ रगड़े, फिर पेशानी, फिर गाल। सफ़ेद जोड़ा अलमारी में फेंक कर स्याह रंग का निकाला था। कंधों पर अभी तक उसके सुलगते लबों का लम्स बुरी तरह जल रहा था। मोहब्बत के इन हसीन लम्हों को वो हक और रिवाज से ज्यादा कुछ नहीं समझ रही थी। कपड़े बदलकर वो ज़ैन शाह का इंतजार किए बिना बाहर निकल गई। तुम्हारे इंतजार में वो बैठे ज़ैन शाह, जिसे तुम्हारी हवस का अंदाजा ना हो। तुम बेहद कमीने इंसान हो। वो दांत पीसकर सोचती निकल गई थी, मगर वो जब बाहर गई तो घर की बेशतर खवातीन ने उसके भीगे खिले खिले सरापे को देखकर एक दूसरे की तरफ देखा। ताई जान के अलावा कोई भी खुश दिली से नहीं मिला था। जाने किस कोने से उसकी माँ निकल कर आई। खुद तो चादर ले रखी थी, उसका नाजुक दुपट्टा भी उसके सर पर डाल दिया। बेहया। शौहर से मुलाकात के बाद गुस्सा लिया है तो क्या सारी दुनिया को दिखाएगी। वो उनकी बात पर शिश्तर रह गई। क्या मतलब है इस बात का? मैंने क्या कोई बेहयाई का काम किया है? आप सबने उस आदमी को खुद मेरा शौहर बनाया, खुद वहाँ मुझे इसके हवाले किया है। अब क्या है ना, उसने मुझे अपने बाप का माल समझकर लूटना तो था ही। मेरा बाप मरने से पहले मुझे उस घटिया शख्स के हवाले जो कर गया था। जानती भी है, सारी रात उस शख्स की हवस पूरी करते गुजरे। अभी भी जिस तरह मैंने जान बख्शी करवाई है, मुझे तो सोचकर घिन आ रही है। ये अब तक अपनी हवस पूरी कैसे कर सकता है? वो दबे दबे लहजे में गुर्रा रही थी, मगर चाची जान उसका हाथ पकड़े कतरे कोने में ले गई। तुम्हारी जुबान पर खंदक है निमल। शोहर की मोहब्बत, उसके हक को हवस कह रही हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और तुम पहले ही दिन उसे अपनी माँ के सामने बेपर्दा कर रही हो। क्या कर दिया उसने? आखिर वही किया जो सदियों से मियाँ बीवी के दरमियान होता आ रहा है। इन सब में बेवजह वावेला मत करना। और तुम जानती नहीं हो क्या ये हक उसे तुम्हारा बाप देकर गया था? शुक्र मनाओ वो मुनकर नहीं हुआ, वरना जिस तरह हम लोग दूर थे, मर्द था कहीं और बहलने को चला जाता तो तुम्हारी जिंदगी तबाह होती। तुम्हें पता है जिस शख्स को तुम हवस का पुजारी बना रही हो वो हूबहू तुम्हारे बाप की कॉपी है। तुमने अपने बाप की जो तस्वीरें देखी वो बहुत धुंधली थी। यहाँ आओ, तुम्हें मैं दिखाऊं। वो शख्स जाते जाते तुम पर, हम पर क्या एहसान कर गया है। सालिहा उसे उस कमरे में ले गई जो बरसों बाद आज भी उसी का था, जहाँ जो चीज़ जैसे सेट की थी आज भी वैसी थी, मगर बार बार साफ करने से उनकी चमक दमक धुंधली पड़ गई थी। मगर उसकी किसी अमानत में वहाँ खयानत नहीं की गई थी। फिर चाहे वो बिस्तर हो, कमरा हो, उसकी दीवारों पर लगाई गई वो मोहब्बत वाली तस्वीरें हों। देखो इनमें तुम्हें कौन नजर आता है, सालिहा और जहांगीर। और तुम्हारे बाप ने अपनी मोहब्बत की दास्तान अधूरी नहीं छोड़ी। तुम में अगर सालिहा थी तो ज़ैनुल आबिदीन में जहांगीर शाह।
उसे अब समझ में आ रहा था कि अचानक एयरपोर्ट पर उसकी माँ उसे देखकर क्यों चौंकी, क्यों उन्होंने कांपते होंठों से उसकी पेशानी चूमी थी, क्यों वहां पर जैन शाह ने उन्हें अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी थी। वो उनसे फासले पर थी, इसलिए कुछ सुन नहीं पाई थी, मगर अब समझ आ रहा था कि उसने तब क्या कहा होगा। उसकी माँ ने उस वक्त कौन कौन से ख्वाब उन दोनों के लिए सजाए होंगे। वो अचानक कैसे बदल गई, क्योंकि वो चाहती थी जहांगीर और सालिहा की कहानी इस बार मुकम्मल हो जाए। वो नम आंखों से वहां खड़ी थी, फिर उसने लब काटे, उनसे उन रस्मों के बारे में बात की थी जिनकी वजह से वो यहाँ से जाना चाहती थी। निमल, वो लड़कियां तुम्हारी नंदे हैं और तुम्हारी सास उनकी माँ है। जब माँ बेटियों को छोड़कर किसी और से मोहब्बत जताएगी तो जाहिर है बच्चों को जलन होती है। इस जलन में उन्होंने मजाक मजाक में कुछ कह दिया होगा और तुम उसे सच समझकर दिल से लगा। वो मुसलसल उसकी हर बेवकूफ़ी पर झुंझला रही थी और वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। वो पहले भी कोई इतनी बहादुर नहीं थी, मगर अब तक जितनी बहादुरी वो जैन शाह के सामने दिखा चुकी थी, उसके बाद सच जानना, और वो उस कदर शर्मिंदगी से खड़ी थी कि उसका सामना कैसे करेगी। निमल, जैन शाह की आवाज पर सालिहा मुस्कुराकर उसकी तरफ गई, जो दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा हाथों के प्यालों में लिया, उन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। मेरा शहजादा बेटा, मेरा बेटा, सोच लें चाची जान, यहाँ लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं, अगर उन्हें बुरा लग गया तो गोली या चाकू भी उठा लेंगे। उसने उन्हें साथ लगाते शरारत से कहा था। वो अपने आंसुओं को साफ करके चेहरे को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा कोई हाथ नहीं बना जो मेरे जैन पर हथियार उठा सके। उन्होंने खिफगी से उसे देखते कहा तो वो हंस दिया। निमल ने दांत पर दांत जमाकर आंसुओं को जब्त किया। वो कितना अच्छा था और वो उसे क्या समझ रही थी। सालिहा बाहर निकल गई तो वो पास जाते उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते चौंका। तुम रोई हो? उसे कितनी फिक्र थी। निमल ने नफी में फिर इस बात में सर हिलाया और आंसू फिर से गाल पर फिसलने लगे थे। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मैं डैड की तस्वीरें देख रही थी, वो बिल्कुल आपकी तरह थे। उसने कितनी चाहत से जैन का चेहरा पकड़कर कहा था। जैन ने उसका हाथ थामकर नरमी से चूमा। वो मेरी तरह नहीं थे, बल्कि मैं उनकी तरह दिखता हूँ। निमल ने कहते सर उसके सीने पर रख लिया। कितना सुकून था वहाँ। जैन की शरारती होठों पर मुस्कुराहट छा गई। हो गई ना मोहब्बत एक ही रात में? बस हार गई। मोहब्बत हमेशा से थी, मुझे भी, उसने एतराफ़ किया। तुमने वो सूट क्यों नहीं पहना जो मैंने मैच किया था? निमल ने सर उठाया। वो उसे ही देख रहा था। सच बताऊं? उसने पूछा तो जैन ने इस बात में सर हिलाया। क्योंकि मैं नाफरमान बनना चाहती थी। बन लिया? उसने पूछा था। निमल ने सर हिलाया। हाँ। क्या मिला इतने क्यूट हस्बैंड को तंग करके? वो अब घूर रहा था। निमल हंसती उसकी कमीज के बटनों को छेड़ते उसने तहम्मुल से कहा, सुकून। अच्छी बीवी हो भाई, नाफरमानी करके सुकून हासिल कर रही हो, वरना मेरा सुकून तो बेगम की खुशी में है। अब मेरा भी। उसने शर्माकर जरा कदम ऊंचे करते लब उसके गालों पर रखे थे। जैन शाह ने अपनी मोहब्बत की छाया उस पर निछावर कर डाली थी। दुख और गलत फहमियों के बादल हटे तो मोहब्बत की बरसात बहुत जोर आवर थी। खत्म शुद्ध।